Now it's Akhilesh Yadav who's sending a very strong message to the Congress party. When asked a question on if the Samajwadi Party is being ignored in the state of Maharashtra, Akhilesh Yadav says, ask this question to those who are ignoring us. Who is Akhilesh talking about? And then comes the even more loaded remark. He says, in politics, there is no place for sacrifice. Listen in. हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। आजादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। Sabyasachi is joining us live. Loaded comment there from Akhilesh Yadav. Rajniti mein त्याग की कोई जगह नहीं है. This statement is also coming after we saw the kind of back and forth that has been taking place between the Samajwadi Party and the allies of the Mahavikas Aghadi in the state of Maharashtra. This statement also comes right after the Congress Party was literally forced to surrender in the by-polls in Uttar Pradesh. Now, what is the Samajwadi Party strategy going to be, Sabyasachi, when Akhilesh Yadav has made it clear that if the MVA does not want to accommodate us, then we will fight in those seats where our organization is strong? Well, that's right. See, on one hand, the Congress party has sacrificed its seats in the state of Uttar Pradesh. Now, on the other hand, the Samajwadi Party Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says that the party will not sacrifice, and there is no place of the word sacrifice in politics. Now, Akhilesh Yadav has made it clear that there are certain factions which are ignoring the Samajwadi Party, and in fact, the Samajwadi Party, if not, they do not get the desired amount of seat from the MVA, then they are going to identify the seats where there is Samajwadi Party organization working, and where their party state president thinks that the Samajwadi Party can get vote. In these seats, they would put out their candidate. Now, the Samajwadi Party Maharashtra chief, in fact, have met Sharad Pawar and put out his grievances. Now, in fact, after the meeting, the Samajwadi Party Maharashtra chief came out and said that the party is taking a prolonged time to announce the seat sharing. Now, on the other hand, the 85-seat equation has been decided within this NCP, Congress and Samajwadi Party, whereas the remaining 18 seats, in these 18 seats, how many seats will go to the other faction of the India Alliance is yet to be decided. Okay. But the message from the Samajwadi Party... because we have Mohsin Raza of the Bharatiya Janata Party joining us. मोहसिन रजा जी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एक चेतावनी दे दी है. ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस को ही मैसेज दे रहे, क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है. ये वो बात तब कर रहा है जब उनके जो महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष है अबू आजमी, उनका ये कहना है कि अगर हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हमने नेम किए हैं, अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, महाविकास अघाड़ी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो हम अपनी तरफ से 25 कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे. ये जो सारी प्रतिक्रिया चल रही है महाराष्ट्र में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूं कि पहले तो उत्तर प्रदेश को देखें, जहां उनको थोड़ा बहुत लोग जानते थे. समाजवादी पार्टी और उसकी स्थापना आप जानती हैं, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता, उस पर नहीं जाना चाहता. मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको यहां से निकाल दिया है लोगों ने, महाराष्ट्र में कहां आप चले जा रहे हैं? कहां आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है कि साहब हम वहां भी लड़ेंगे, हम यहां भी लड़ेंगे. उत्तर प्रदेश की पहले ये 9 सीटें जो बाई इलेक्शन की हैं, यही बचा के दिखा दे. अब वो ये सब पार्टियां इतिहास हो चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो. इनको अब जनता ने नकार दिया है, देश की जनता ने कांग्रेस को और प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को. तो ये अब इनका कहीं कुछ चलने वालने वाला नहीं है. ये रही जो गठबंधन है. प्रदेश की बात की, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राशिद अलवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. गुड आफ्टरनून मिस्टर अलवी. Akhilesh Yadav was asked a question specifically on what's happening with the Samajwadi Party in Maharashtra. The reporter asks, are you being ignored by some allies? He says, why don't you ask that question to those who are ignoring us? Then he says, we will contest on seats. If the alliance doesn't want to accommodate us, we will contest on seats in Maharashtra where our organization is strong, and also goes ahead and says that in politics there is no place for sacrifice. But isn't that what the alliance dharma is about?
some sacrifice, some accommodation. So what is the kind of message your alliance partner is trying to give you, Mr. Alvi? I think he is absolutely right. If he is a part of this alliance, then definitely he may be given 4, 5, 6, 7 seats according to the compromise. Otherwise, if he is not part of the alliance in Maharashtra, so he is free to contest whatever seats he wants to contest. Okay, so It you is very think that natural. Samajwadi Party should not be a part of the Agadi alliance in Maharashtra because SP on its own has already declared 5 candidates? Yeah, it is. Samajwadi Party is not part of this alliance in Maharashtra. But they're still personally, waiting I for feel you to confirm, Mr. Alvi. I beg your pardon to interject, but I humbly want to ask you, they are constantly waiting for you to tell them, Bhaiya, status kya hai? Will you support our 5 candidates or not? Because their own party leader yesterday said, if you do not support us, 25 of our candidates we will field as independents and they will then contest elections. Definitely, they are free to contest 25 seats, 30 seats, 40 seats. If they are not part of this alliance, how can you stop them to contest? Okay. But personally, I feel basically it will be decided by the leadership of the all 3 parties. But personally, I feel that he should be accommodated. Acha. So that we can defeat Bharatiya Janata Party easily. मोहसिन रजा जी, There is कांग्रेस पार्टी absolutely के जो general राशिद right. अलवी जी हैं वो कह रहे हैं कि उनका ये पर्सनल ओपिनियन है कि समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट कर देना चाहिए। बाईपोल में कांग्रेस ने बोला है कि हम नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को लड़ने दीजिए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कह रही है राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है ये? देखिए, राशिद साहब बहुत सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब कहीं कुछ बचा बचा है नहीं। अब ये इस तरह की चीजें खुद ही वो कह रहे हैं कि उनको लड़ने देना चाहिए, वो अपनी सीट पर चाहे 20 पे लड़ें, 25 पे लड़ें। इसका मतलब ये है कि ये भी समझ रहे हैं कि हमें भी वहां कुछ हासिल नहीं होना है, कांग्रेस भी वहां कुछ हासिल करने जा नहीं रही है, तो लिहाजा चलो इनको भी अपना दिल ये पूरा कर लें। अलायंस नहीं है हमारा, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आपने सरेंडर कर दिया फौरी तौर पे? आप भी लड़ जाते हैं ना आप उत्तर प्रदेश में। जी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पूरा जो पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स जो चल रहा है उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून मिस्टर यादव, व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र? हु इज इग्नोरिंग यू? अखिलेश यादव सेज कि इफ when he was asked a question, is the Samajwadi Party being ignored, he says ask those people who are ignoring us. कौन इग्नोर कर रहा है आपको? आपको आपके अलायंस पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, बहुत ज्यादा बात तो नहीं कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन 12 सीटों की मांग थी। 12 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान था कि अगर कम पे भी लड़ना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सेक्रीफाइस करेगी, और हम जीतने के लिए लड़ना चाह रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी कई सारी घटनाक्रम हो गई, अलायंस 3 बैठ के उसमें बातें तय कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया जा रहा है। किसने इग्नोर किया? ये तीनों महाविकास अघाड़ी के दल हैं जिनपे अपनी जिम्मेदारी है। नहीं तो आपका ये कहना है कि महाविकास अघाड़ी में जो है, जो कि शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार फैक्शन और कांग्रेस पार्टी, इन 3 पार्टियों ने समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया, ये आप कह रहे हैं? मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं कि देखिए, हमारा एलआई पार्टनर जो उत्तर प्रदेश में है वो कांग्रेस है, तो वहां कांग्रेस की ये बड़ी भूमिका बनती है कि कांग्रेस वहां पे जो महाविकास अघाड़ी दल के और भी दल हैं, चाहे वो शिवसेना का हो या शरद पवार जी की पार्टी का हो, उन सब के साथ एक बेहतरीन तालमेल के साथ समाजवादी पार्टी का भी पक्ष रखना चाहिए। मनोज जी सीधे सीधे कहिए ना कि कांग्रेस पार्टी आपको इग्नोर कर रही है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में आपको इग्नोर कर रही है क्योंकि आप, जैसे आपने कहा, उत्तर प्रदेश में वो आपके अलायंस पार्टनर्स हैं। बाईपोल में एक पैक्ट आपके बीच में रहा जहां कांग्रेस ने लिटरली सरेंडर कर दिया। महाराष्ट्र में आपकी डिमांड क्या? आपने कहा 5 कैंडिडेट हमारे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, उसमें भी आपको इग्नोर किया गया, कांग्रेस ने इग्नोर किया आपको। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी 9 सीटों के चुनाव में 3 सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दे रही थी। अब उनकी चॉइस की सीटों की बात थी, अब उनकी अपनी उसमें भी चॉइस थी। वो चुनाव नहीं लड़े चूंकि उनका फोकस मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और झारखंड पे है। तो वो ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं, अब समाजवादी पार्टी का सिर्फ स्पष्ट कहना है कि हमने 2024 के चुनाव में 17 सीटें दी। 17 सीटों का मतलब जानते हैं कितनी विधानसभा? 85 कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई विधानसभा की। आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? तो जो जीत सकता है, तो एक मिनट, मनोज यादव जी, आपका ये कहना है कि सपा
जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है लोकसभा चुनाव में, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसने विनेबिलिटी का एक फैक्टर दिखा दिया है, अब उसको पूरे अलायंस में, पूरे इंडिया में बिग ब्रदर का रोल प्ले करना चाहिए? क्या आपकी ये उम्मीद है? देखिए, आई डोंट वांट मेक बिग ब्रदर, हम इंपॉर्टेंट ब्रदर बनना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ब्रदर, राशिद अलवी, ए समाजवादी पार्टी दी इंपॉर्टेंट ब्रदर। ओके, कांग्रेस पार्टी के आपके अलायंस पार्टनर थे हमारे साथ, पर उनका कॉल अभी ड्रॉप हो गया है, लेकिन मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ है। लेकिन मनोज यादव जी, आप कह रहे थे कि आपको इंपॉर्टेंट पोजीशन चाहिए। महाराष्ट्र में आपकी क्या उम्मीदें हैं? जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपने कि इग्नोर किया गया, और कांग्रेस से आपकी उम्मीद थी कि वो अपने अगाड़ी के अलायंस से भी बात करे आपके बारे में, लेकिन हो क्या रहा है? आप अंदर की खबर बताइए हमें। नहीं, अंदर की खबर यही है कि लगातार जो 5 सीटों की मांग है उस पर भी बात नहीं बन रही है। मध्य प्रदेश में 5 सीटों की मांग थी, उस पर भी नहीं बात बन रही थी। हमने कोई बहुत ज्यादा डील भी नहीं की थी हरियाणा में, उस पर भी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से आने लगती। कहने का सिर्फ इतना मतलब, आप बीजेपी को हराना चाहते हो कि देश की जनता को ये बता रहे हो कि हम समाजवादी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे भले बीजेपी सत्ता में रहे? ये कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि लार्जर मोटिव क्या है। मोहसिन रजा जी, क्या आप हमारे साथ अभी भी है? समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है हमारे साथ, उनको ऐसा लग रहा है कि जो पहले इंडिया अलायंस साथ में आया था, या जो अलायंस इनकी साथ में हुई, इनका लार्जर एजेंडा था बीजेपी को हराना। लेकिन जैसे आप लोग पहले से आरोप इन पे लगाते हैं कि एक डिवाइडेड अलायंस है, अभी जो इनकी सीट शेयरिंग पैक्ट चल रही है उसमें तो ये डिवाइड इन्होंने खुद एडमिट कर दिया है। देखिए, अभी एक बात कह रहे थे मनोज जी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है वहां समाजवादी पार्टी को। मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे प्रदेश की जनता ने ही आपको इग्नोर कर दिया है। आप कहां चक्कर में पड़ रहे हैं? आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने गए, आप अभी आपको हरियाणा में सबने बताया है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने गुमराह करा था उत्तर प्रदेश की जनता को। आपने छलावा किया कि हम 1 लाख देंगे महीनों को और ये करेंगे और वैसा करेंगे। कांग्रेस ने झूठे वादे किए और आप उनके साथ में खड़े रहे, और आपने जिस तरह का भ्रष्टाचार और गुंडाराज प्रदेश में फैलाया था, जनता ने 2 बार आपको बाहर किया है सत्ता से। और आप देश की सत्ता की बात कर रहे हैं जहां हैट्रिक पर बैठी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप हमारी क्या बराबरी करेंगे? बात है, समाजवादी पार्टी किन से लड़े? कांग्रेस से भी वो इग्नोर हो रही है, अब आप भी उनसे लड़ रहे हैं। अभी वो जो कह रहे थे, ये इनकी अलायंस की बात है। मनोज जी, एग्जैक्ट मुद्दा क्या है ये बताइए। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी फुटप्रिंट बनाना चाह रही है, और क्या उनको ये जो उनको सपोर्ट चाहिए था कांग्रेस पार्टी से या महाविकास अघाड़ी से, वो सपोर्ट उनको नहीं मिला, तो फाइनल आपकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जैसे अबू आजमी जी कहते हैं कि 25 से 30 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो उतारेंगे, क्या वो आप ये करने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये बात वहां के गठबंधन दलों को समझनी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, हमने महाविकास अघाड़ी को समर्थन दिया, हमारे समर्थन से सरकार चली। 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां हम रनर अप रहे। कहां पे? जहां पे इतने दल थे, इतने गठबंधन थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में उन सीटों पे रही। तो हम क्या जाति कर रहे हैं? जाति क्या कर रहे हैं? हम 50 सीट मांग रहे हैं क्या? हम ऐसी चीज कर रहे हैं कि सबको एम्बेरस फील हो रहा है, सब एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 5 सीटें, 6 सीटें, और यहाँ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अबू आजिम साहब ने कहा कि एक सीट पे अगर बाय द वे वो शरद पवार जी की पार्टी की सीट है, तो अगर वो नहीं ला सकते हैं, हमको नहीं दे सकते, तो हमारा प्रत्याशी ले लें, एडजस्ट कर लें। तो ये पूरे अलायंस में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है अभी? ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखिए बाईपोल में तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि वो आपको सारी की सारी सीटों में वो लड़ेंगी तक नहीं। पहले आपने कहा कि साइकिल के चिन्ह पे आईएनडीआई के कैंडिडेट्स लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हम तो लड़ेंगे भी नहीं। तो कांग्रेस ने वहां तो आपको बोला कि चलिए हमने तो यहाँ पे अकोमोडेट किया। तो महाराष्ट्र में जहां आप उतने स्ट्रांग है नहीं, या आपका उतना प्रेजेंस भी नहीं है, तो वहां पे आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको इतनी सीटें दे? तो क्या ये गलत है, या ये समाजवादी पार्टी अगर अपना इम्प्रिंट इंक्रीज करना चाह रही है तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत थी कि वो 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी? गठबंधन में इतनी मजबूत थी क्या? और 6 सीटें आपको सदन में जाने के लिए उत्तर प्रदेश में मिली नहीं? अलायंस है क्यों फिर मनोज जी? ये तो बताइए, अलायंस फिर जब इतना मिसट्रस्ट है, जब एक दूसरे की बात आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर अलायंस में रहने का मतलब क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के त्याग का फायदा उठाने का
प्रयास किया जाए। वेरी बिग चार्ज देयर कमिंग इन। समाजवादी पार्टी के त्याग का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है एट अ टाइम व्हेन अखिलेश यादव हैज सेड दैट इन पॉलिटिक्स देयर इज नो प्लेस फॉर सैक्रिफाइस। मनोज यादव जी एंड मोहसिन रजा जी, thank you so much for joining us. You saw that face off breakout here on Times Now at a time when alliance partners seem to be at war ahead of the crucial elections in Maharashtra.